یہ ہے میرا کیلنکوئی ہیوملس، کیلانچو بھی بولتے ہیں لیکن مجھے کیلنکوئی بولنا ذرا اچھا لگتا ہے. اور آج ہم اس ویڈیو میں اس کا ایک بلومنگ سیزن دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کے اوپر فلاورز آتے ہیں اور کس طرح کے فلاورز اس کے اوپر کھلتے ہیں اور کس طرح سے فلاور اس کے کھل کے ختم ہو جاتے ہیں. یہ میرا اس کے فلاورز کے ساتھ پہلا سیزن ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کس طرح کے فلاورز آئیں گے، تو ابھی میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہی دیکھوں گا کہ اس کے فلاورز کس طرح کے ہوں گے. اور ابھی یہ جو ہے اس کے اوپر کافی ساری اس کی وہ ٹپس اور یا روزٹ جسے کہہ سکتے ہیں ہم، وہ بن رہی ہیں. کٹنگز تو اس کے اندر 3-4 ہی لگی ہوئی تھی، لیکن وہ پھر برانچنگ جو ہوتی جاتی ہے ایک کے ساتھ پھر دوسری نکلتی جاتی ہے سائڈ سے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر یہ اس کے جو ہیڈز ہیں یہ کافی سارے ہو چکے ہوئے ہیں. یہ برانچز کی جو ٹپس ہیں یہ کافی ساری ہو، اور جتنی ساری آپ کی یہ ٹپس ہوں گی اتنی ساری ہی آپ کے اس کے اوپر فلاورز لگیں گے، کیونکہ یہ ٹپ کے اندر لگتا ہے. ٹپ میں سے اس کا یہ نکلتا ہے، اس کا بلومنگ سٹاک جو ہے. تو یہ اس طرح سے کچھ اس میں سے اتنی نکل رہی ہے. یہ والی سب سے لمبی ہے فی الحال، اور اس میں سے ابھی یہ نکل رہی ہے تھوڑے دنوں تک یہ اس میں سے بھی نکل آئے گی. اور اس کے ساتھ سے ہی یہ ایک اور بھی نکل رہی ہے، یہاں سے بھی یہ نکل رہی ہیں کافی ساری. مطلب کہ جتنی ٹپس ہیں اس میں سے بھی شاید نکلے گی. اس کے لیفا بھی اوپر سے بند ہے، تو جتنے مطلب کہ اس کی ٹپس ہیں اتنے اس کے اوپر بلومنگ سٹاکس نکل رہے ہیں اس کے. اور یہ کچھ میرا چھوٹے سے پاٹ میں لگا ہوا ہے، یہ کوئی 5 انچ کا کوئی 6 انچ کا پاٹ ہوگا. اور یہ ایسے ہے. پلانٹ کا انٹروڈکشن کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کا کلر کافی تھوڑا ڈفرینٹ سا کلر ہے. باقی سارے گرین سے پلانٹ ہوتے ہیں اس طرح سے، لیکن اس کا کلر تھوڑا پرپلش شیڈ میں، تھوڑا مرونش شیڈ میں. گرمیوں میں یہ گرین ہو جاتا ہے، پھر جیسی سردیاں تھوڑا آنا شروع ہوتی ہیں تو جب پھر اس کی اپنا کلر چینج کرنا شروع ہو جاتا ہے سردی کی وجہ سے. تو اس کا کلر یہ کچھ اس طرح سے شیڈنگ ہے اس کے اوپر، یہ پرپل اور ساتھ میں کچھ گرینش سا کلر ہے اس کی بیس پہ، اور ساتھ میں پرپل کلر کی، مرون کلر کی اس میں شیڈز ہیں. یہ ایسے یہ کافی سینسیٹیو پلانٹ ہے میرا. یہ 3 سال سے ہے میرے پاس. ایک دفعہ میں نے مار دیا، پھر میں نے نیا لیا، اور گرمیوں میں یہ پھر پرابلم کرنے لگ جاتا ہے. تو پھر بہت کیئر کرنے کے بعد ہی میرا ابھی یہ سروائیو کیا ہے. اور ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا رہتا ہے سردیوں میں. سردیوں میں پھر یہ اچھا چلتا ہے، گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے، اور فلاورنگ بھی جو ہے اسے پھر سردیوں میں ہی ہوتی ہے. تو ابھی جیسا کہ یہ دسمبر چل رہا ہے، دسمبر کا آج تقریباً 10-12 ڈیٹ تو ہو ہی چکی ہے. تو یہ اس طرح سے ابھی اس کے اوپر فلاورز آ رہے ہیں، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے اس کی بلومنگ سٹاکس بڑی ہوتی ہیں، کتنی لمبی ہوتی ہیں. اب مجھے نہیں آئیڈیا کہ کتنی مزید لمبی ہوگی ہے، اور پھر اس کے اوپر فلاورز کس طرح کے آتے ہیں. تو یہ فی الحال کچھ ایسا ہے میرا پلانٹ. یہ ایسے اس کی بلومنگ سٹاکس جو تھیں وہ اس طرح سے کافی بڑی بڑی سی ہو رہی ہیں. یہ والی تو کافی لمبی سی ہو گئی ہے، اور کچھ چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر برڈز ہیں، لیکن ابھی کھلنا سٹارٹ نہیں ہوئے ہیں. یہ شاید کھل بھی رہے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں بالکل. یہ اس طرح سے یہ والی دیکھو، یہ ایسے، یہ ایسے. اور اس کے اندر سے تو ابھی نکل بھی رہی ہے، یہ اس کے اندر سے بھی نکل رہی ہے. یہ اس طرح سے اس میں سے بھی یہ چھوٹی سی نکلی ہوئی ہے، اس کے اندر سے بھی شاید نکلے. تو یہ اسی طرح سے فی الحال اس پہ برڈز جو ہیں وہ اتنے سے اس پہ آ رہے ہیں. آج 15 فروری، اور اس کے فلاور جو ہیں یہ اتنے کچھ بڑے سے ہوئے ہیں. یہ ایسے کافی لمبی لمبی سی اس کی سٹاکس ہو رہی ہیں، اور فلاور ابھی کھلے نہیں ہیں اس کے، اور کچھ بہت چھوٹے چھوٹے سے اس کے فلاورز ہونے والے ہیں. یہ اس طرح سے یہ بالکل چھوٹی چھوٹی سی اس کی برڈز ہیں، اور اس کے فلاورز بھی پھر اسی طرح سے چھوٹے سارے ہی کھلیں گے. یہ ایسے ہیں اس کی برڈز، اس طرح سے. یہ ایسے اور بھی ابھی نکل رہی ہیں اندر سے. یہ کچھ یہ چھوٹی سی نکل رہی ہے، یہ اس میں سے کچھ چھوٹی سی نکل رہی ہے. اور نیچے والے پتے جو ہیں وہ کچھ ڈرائی ہو رہے ہیں، اور نیچے سے کچھ یہ نیو گروتھ بھی نکل رہی ہے. یہ اس طرح سے یہ والی اور یہ والی، اور یہ لیف کے یہاں سے یہ والے جو 2 لیف نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں سے بھی اس کی یہ نیو گروتھ نکل رہی ہے. اور ایک یہاں سے اس کا یہ بھی اس کا فلاور نکل رہا ہے یہاں سے، اس والی میں سے بھی. تو یہ فی الحال اس طرح سے ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے فلاور کب کھلتے ہیں اور کس طرح کے کھلتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں. تو پھر وہ سارا ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں. ابھی آج 1 مئی ہے، اور اس کے فلاور جو ہیں یہ اس طرح سے، اس کی برانچز جو ہیں، فلاورز کی سٹاکس جو ہیں یہ کافی لمبی لمبی سی ہو رہی ہیں. یہ ایسے کافی زیادہ اس میں برانچنگ ہو رہی ہے.
फ्लावर्स, इसका जो वो स्टॉक थी उसके आगे से ये काफ़ी ज़्यादा सी इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं। और इसमें जो इसके फ्लावर्स थे ये कुछ खिले नहीं हैं, ये इसी तरह से बस छोटे छोटे से वो गोल गोल से बढ़ ही रहे हैं इसके, और वो अब आगे जाके ड्राई होने लग गए हैं। ये इस तरह से, ये ऐसे कुछ बहुत सारे लगे हैं और ये कुछ इसी तरह से रहे हैं। फ्लावर्स का मज़ा नहीं आया मुझे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितना प्यारा मतलब कि ये प्लांट है, ये देखो इस तरह से इसमें कितनी मज़े की शेड्स आती हैं और उस हिसाब से इसके फ्लावर्स भी बहुत मज़े के होंगे, लेकिन वैसा नहीं है। प्लांट ही मज़े का, बस इसके फ्लावर्स ही मज़े के। तो अगले साल मैं फिर क्या करूँगा कि जब फ्लावर्स आने वाले होंगे, जब छोटी छोटी सी इसकी निकल रही होंगी, तो मैं जब भी उसको ऊपर से काट दूंगा, ताकि फ्लावर जो है वो फालतू में प्लांट की जो एनर्जी है वो कंज्यूम करते रहते हैं। तो इसलिए देखो ना वो कैसे वो थोड़ा पेल कलर के होने लग गए हैं। ये इसके लीफ इस तरह से जो नए निकल रही हैं वो वाले फ्रेश भी हैं, उनका कलर अच्छा भी है। ये देखो यहाँ से ये न्यू ग्रोथ निकल रही है। तो इस तरह से ये कुछ प्लांट है। और अभी जो है मैं इसका ये सारी ऊपर से काटने लगा हूँ। ये जहाँ अंदर से करके निकल रही है, ये ऐसे, ये इस तरह से मैं सारी इनकी जो है ब्लूमिंग स्टॉक्स जो हैं ये मैं यहाँ से रख के तो सभी की काट दूँगा, ताकि प्लांट थोड़ा हल्का हो और वो जो इतनी एनर्जी उसने अपनी लगा दी है फजूल के फ्लावर्स निकालने में, वो थोड़ा उसकी एनर्जी रिस्टोर हो सके। ये ऐसे ये इतने से फ्लावर जो है मैंने इसके काट दिए हैं और मेरा प्लांट जो है ये अब कुछ इस तरह से लग रहा है। ये ऐसे कुछ जो पुराने वाले लीव थे वो ऐसे येलो हो रहे हैं, लेकिन कुछ अंदर से ये जो न्यू ग्रोथ यहाँ से आ रही है इनका कलर जो है ये थोड़ा अच्छा। वैसे भी वो फ्रंट साइड पे था तो धूप छत ज़्यादा लगने की वजह से, ये बैक साइड पे था तो वो ज़रा कम धूप छत लगी है, तो इस वजह से इसका कलर थोड़ा अच्छा। तो अभी इसकी हम केयर की बात करें तो केयर में इसका ये है कि ये चलता सारा साल ही है, लेकिन गर्मियों में फिर थोड़ी प्रॉब्लम करने लग जाता है। जब धूप बहुत तेज़ होती है तो ये इस तरह से इसके लीव्स जो हैं ये येलो होने लग जाते हैं। सर्दियों में इसके कलर बहुत रिच हो जाते हैं, मरून कलर इसका बहुत रिच हो जाता है और ये इस तरह से इसमें शेड्स जो हैं ये काफ़ी अच्छे से आने लग जाती हैं। और धूप गर्मियों में फिर आप इसे क्या करोगे कि इसे आप इसे ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे थोड़े टाइम के लिए धूप आती हो, सुबह की धूप आती है। सुबह की धूप ज़रा थोड़ी इतनी इंटेंस नहीं होती है, थोड़ी कच्ची होती है, थोड़ी हल्की होती है, माइल्ड होती है, तो वो उस तरह से हार्म नहीं पहुंचाती इस प्लांट्स को, इस तरह से जो डेलिकेट प्लांट्स होते हैं। और गर्मियों में फिर आप ऐसे रखो, बरसात से बचा के रखो, ओवर वाटरिंग नहीं इसमें होनी चाहिए, नहीं तो ये गल भी सकता है। और पानी आप खुद से भी अगर दे रहे हो तो जब इसकी सॉइल ये वाली आप चेक कर लो इस तरह से हाथ लगा के, जब बिल्कुल ड्राई हो जाए सॉइल तो फिर आप इसमें नेक्स्ट वाटर दो। ये नहीं कि आप रोज़ रोज़ पानी देते रहे हो, आपने नहीं देखा सॉइल ड्राई है, नहीं देखा सॉइल वेट है, आप रोज़ाना पानी देते हो, ऐसे नहीं करना है। जब इसकी सॉइल चाहे वो 2 दिन में हो जाती है सॉइल ड्राई, चाहे वो हफ्ते में होती है ड्राई, जितनी भी देर बाद होती है, आपने सॉइल चेक करके तो फिर इसको पानी देना। बाकी फर्टिलाइजर जो है इसको मैंने तो नहीं कुछ भी दिया, अगर आप चाहो तो कुछ हल्का सा फर्टिलाइजर दे सकते हो, एनपीके डीएपी वगैरह, कुछ काऊ डंग वगैरह, कंपोस्ट वगैरह, कंपोस्ट और इस तरह की कोई भी चीज़ जो भी आपने देना, बस कुछ बहुत हल्का सा ही से देना है। तो बहुत माइल्ड वाला फर्टिलाइजर देना, बहुत तेज़ केमिकल वाले फर्टिलाइजर आपने नहीं देने हैं। और देना भी आपने बहुत कम है, लाइक महीने में 1 दफ़ा हल्का सा दे दो, या अगर मैं तो करता होता हूँ कि 1 दफ़ा स्प्रिंग में दे दे, 1 दफ़ा फॉल में दे दे, मतलब कि साल में 2 दफ़ा दे दिया हल्का सा। वैसे भी सकुलेंट है तो ग्रोथ इतनी फास्ट तो इसकी होती नहीं है, और फर्टिलाइजर तो हम फास्ट ग्रोइंग के लिए देते हैं और न्यूट्रिएंट्स ताकि इसको अच्छे मिले उसकी ग्रोथ। लेकिन इसको चाहे आप ज़रा फर्टिलाइजर दोगे तो उसके साथ ही फिर प्रॉब्लम करने लग जाएगा। ग्रो इसने अपनी मर्जी से ही स्लो ही करना है, तो इसलिए फर्टिलाइजर की तरफ इतना ध्यान अगर आप इस केस में ना ही रखो तो वो बेहतर है, क्योंकि सॉइल भी जितनी आपने लगा दिया हुआ है तो सॉइल के अंदर भी इनफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि ये 1-2-3 साल तक आराम से उसमें अंदर से अपना पूरा कर सकता है। बाकी पॉट इसका जो है वो आप हमेशा इसे छोटे पॉट में लगाओ, क्योंकि इसकी रूट सकुलेंट्स को तो इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो हम बड़े पॉट में लगा देते हैं तो बड़े पॉट में पानी इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता है, तो उसके साथ फिर क्या होता है कि सॉइल बहुत देर तक, बहुत दिनों तक जो है वो मॉइस्ट रहती है, तो उसके साथ इसकी रूट्स गल भी सकती हैं। और दूसरा ये कि आप इसको मिट्टी के गमलों में अपने कैक्टस या सकुलेंट्स को लगाओ, कभी भी प्लास्टिक पॉट्स में नहीं लगाओ, क्योंकि प्लास्टिक पॉट जो है वो गर्मियों में प्रॉब्लम करते हैं। जब हीट पड़ती है तो वो सॉइल आपकी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है प्लास्टिक की हीट की वजह से। लेकिन ये जो मिट्टी के गमले होते हैं ये प्लांट्स की रूट्स को ठंडा रखते हैं, इसके अंदर से भी पानी की ये जो सरफेस उसकी होती है, बॉडी जो इसकी होती है बाहर वाली, इसके अंदर से भी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो उसके साथ थोड़ा ठंडा रखते हैं। पानी भी वो जो मटकों में डाल के रखते हैं तो वो भी अंदर से पानी ठंडा हो जाता है, तो इसका
का भी ये सिस्टम है कि अगर आप मिट्टी भी इसके अंदर रखी हुई है तो उसके साथ भी हवा क्रॉस होती रहती है, तो उसके साथ इसकी तरह ठंडी रहती है। तो प्लास्टिक में लगाने से आप अवॉइड करो। कभी कभी ये होता है कि प्लास्टिक में अच्छे चल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि प्लास्टिक में प्रॉब्लम भी कर जाते हैं। लेकिन अगर आपका प्लांट प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर आप प्लास्टिक का रिस्क नहीं लो, उससे फ़ौरन से सॉइल में उसके मिट्टी के गमले में ट्रांसफ़र कर दो। और इसकी प्रोपेगेशन की अगर बात की जाए तो प्रोपेगेशन भी इसकी बहुत ईजी है। ये लीफ से भी प्रोपेगेट हो जाता है। लाइक ये तो मेरा पुराना लीफ ख़राब हो रहा था तो मैंने कहा चलो इसमें हटा दूँ। तो इसको मैं जस्ट बताने के लिए आपको कि इस तरह से आपने लीफ लिया और इस लीफ को आपने हाफ जो है ये इतना सा जो है इसका पार्ट वो आपने सॉइल में दबा दिया, ये ½ इंच तक। ये इस तरह से थोड़ी सी सॉइल लूज़ की जहाँ पे भी आप लगाना चाह रहे हो, तो इस थोड़ी सी सॉइल लूज़ की और उतना जितना मैंने पार्ट आपको बताया वो इसमें लगा के इस तरह से, तो आप इसको बाकी का जो है इसको सॉइल से बाहर रखोगे। ये इस तरह से ये हो गई इसकी लीफ से प्रोपेगेशन। लीफ से प्रोपेगेशन थोड़ी स्लो होती है, काफ़ी टाइम भी लग जाता है। न्यू प्लांट बनते पहले ये लीफ जो है रूट्स बनाता है, फिर रूट लेवल से नया प्लांट डेवलप होकर बाहर निकलता है, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग आपका प्रोसेस हो सकता है। बाकी इसको कटिंग से भी इजीली प्रोपेगेट किया जा सकता है। लाइक अगर कुछ इस तरह से है, आपने यहाँ से आप कट करो और नीचे से थोड़े से लीफ आप हटा दो और लाइक 1.5-2 इंच तक की स्टिक आप खाली करके तो उसको आप सॉइल में दबा दो, तो वो आपका इजीली हो जाएगा। प्रोपेगेशन आपने करनी किस सीज़न में, आप इसको अगर गर्मियों के बाद करो, लाइक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वगैरह में करो, तो जब इसकी सक्सेस के चांसेस आपको ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप गर्मियों में करते हो या गर्मियों से पहले करते हो, लाइक फरवरी, मार्च, अप्रैल में करते हो, तो जब आपको इसके सक्सेस के चांसेस थोड़े कम भी देखने को मिल सकते हैं। जब इस सीज़न में अगर आप हो जाती है, लेकिन केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, धूप से बचा के रखना पड़ता है, फिर तो हो जाती है। वैसे तो अगर आप थोड़े एक्सपर्ट हो तो आप इन महीनों में भी, गर्मी के महीनों में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो फिर आप गर्मी के महीनों का रिस्क नहीं लो, तो आप इसे सर्दी में ही प्रोपेगेट करो। तो ये था मेरा प्लांट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इसके फ्लावर्स मेरे लिए एक नई चीज़ थी और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके लिए भी ये नई चीज़ होगी या जिन्होंने ग्रो किया है, वो देखना चाह रहे हैं कि इसके पता नहीं किस तरह के फ्लावर्स आएंगे। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए था ताकि उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो सके, उनको पता चल सके कि जो प्लांट उनके पास है उसके ऊपर फ्यूचर में किस तरह के फ्लावर आने वाले हैं। और बाकी केयर की भी बात होगी। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह कोई बात वगैरह रह गई हो या कुछ मज़ीद इसके बारे में पूछना हो तो वो वापस से नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।